Hello बच्चों, welcome back to Vilas Academy. Now, we have already seen the development of male gametophyte in the previous lecture, and today we are going to see the development of female gametophyte. Female gametophyte is a structure which will bear the female gamete. Now, we have seen how in anther the microspore mother cell developed, and the microspore developed, and then further it developed into the pollen grain which bears the male gametes. In a similar manner, when we look at this structure, that is gynoecium, gynoecium bears the structure of ovary, and ovary is a structure which develops the megaspore cells which further develops into the female gametophyte. Now, this is the structure of anatropous ovule. Now, the anatropous ovule is attached to the structure called as placenta. This stalk-like structure is called as funicle. And the junction where this anatropous ovule is joined towards the funicle is called as hilum. Now, this two layers is called as outer layer and inner layer, and these are the layer of integuments. Now, हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसमें हमारे चलाइजल एंड पे, इसे हम कहते हैं चलाइजल एंड, चलाइजल एंड पे होते हैं हमारे एंटीपोडाल सेल्स. Now, here in the micropylar, this end is called as micropylar end. This is called as our polar nuclei. इसे कहते हैं हम egg cell, that is female gamete, and these two cells are called as synergids. बच्चों, synergids को facilitating cells भी बोला जाता है क्योंकि जब हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जर्मिनेट होता है, इट गिव राइज टू द पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब की एंट्री को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला जो एंट्रेंस रहता है थ्रू सिनर्जिड्स होता है. तो इसी को हम फैसिलिटेटिंग सेल्स भी बोलते हैं. सिनर्जिड्स के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस. अब ये हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ये काफ़ी बार पेपर में आता है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जहाँ पे आप बताएंगे कि हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, दिस इज फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस
ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. नाउ if you will look at this diagram, this shows what you have to write. First you have to draw the diagram. It shows the inner and the outer layer. Inner and outer layers are called as integuments. And again, very important thing is, inner side to this integuments there is most important layer, that is nucellus. ये जो न्यूसेलस है, ये ही न्यूसेलस सेल से फर्दर हमारी मेगास्पोर मदर सेल्स बनती है, जो कि डेवलप करेगी हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को, दैट इज हमारे एनाटोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को. नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर है, हम ये बनने की शुरुआत देखेंगे. हमारी जो न्यूसेलस सेल रहती है, ये बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल. ये मेगास्पोर मदर सेल फर्दर डेवलप होती है हमारे मेगास्पोर्स को बनाने में, और हमारे मेगास्पोर बनाते हैं हमारा फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल. नाउ दिस मेगास्पोर cell go through the process of megasporogenesis. Megasporogenesis, ये definition आपके पेपर में आ सकती है for 2 marks, where you have to write the process in which the megaspore mother cell undergoes meiotic division to form the megaspore, which will further give rise to the female gametophyte. This process is called as megasporogenesis. So the process where megaspore undergoes mitotic division the process where megaspore mother cell undergoes mitotic division to form megaspores that further develops into female gametophyte, is called as megasporogenesis. Now this megaspore is diploid structure. Now you have to remember always what is meiotic and what is mitotic division. So meiotic division occurs in the reproductive cells, where the diploid cells undergo the reductional division and forms the haploid cells. Now we will see how this megaspore cells develop into the megaspores. Megaspore mother cell. ये बेटा आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, जो कि फर्दर बनाता है टेट्रेड ऑफ द सेल्स. दे आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स. और ये जो आपका मेगास्पोर टेट्रेड बना है, ये हैप्लॉइड है, बिकॉज ये बना है मियोटिक डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से. यहाँ पे 2n to n दैट इज रिडक्शनल डिवीजन हो गया. अब आपके ये जो 3 सेल्स रहते हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं और इनमें से सिर्फ एक सेल बचता है. दिस इज the megaspore, which further goes
3 times mitotic division to form the free nucleus. Now, when it goes 3 mitotic divisions, तो ये फर्स्ट सेल से 2 सेल बनाता है, वो 2 सेल फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होके 4 सेल्स बनाती हैं, एंड दिस 4 सेल्स फर्दर माइटोटिकली डिवाइड एंड दे फॉर्म 8 सेल्स. तो हमारा फाइनल स्टेज, एक सेल से हमारे ये 2 सेल्स बने माइटोटिक डिवीजन से, फिर हमारे यहाँ पे 4 सेल बन गए, और ये 4 सेल फर्दर 8 सेल में, 8 न्यूक्लिएटेड सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं. अब ये जो आपके 8 फ्री न्यूक्लियस बने हैं, ये फर्दर कैसे अपने आप को बाइफर्केट करते हैं, सेपरेट करते हैं, और कैसे हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल का जैसा स्ट्रक्चर था उसमें तब्दील करते हैं, वो हमें देखना है. नाउ व्हेन दिस 8 फ्री न्यूक्लियर आर प्रेजेंट, इसमें से हमारी ये जो 3 न्यूक्लियस हैं से ये हमारे 3 सेल्स ऊपर चले जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं एंटीपोडाल सेल्स. देन यहाँ जो 2 सेल्स बचे हैं, ये सेल्स बनाएंगे हमारी पोलर न्यूक्लियाई, जो कि डिप्लॉइड इन नेचर है. ये जो हमारे 3 सेल्स बच गए हैं, उसमें से हमारा फर्स्ट सिनर्जिड और एग सेल बनेगा. दिस इज आवर एग सेल और फीमेल गैमेट, एंड दिस आर सिनर्जिड्स, एंड दिस इज फिलिफॉर्म apparatus. Now, this is a structure of female gametophyte. Now, when we see this structure is said as 7-celled. इसे हम कहते हैं 7-celled and 8 nucleated stage. 8 nucleated stage. अगर आपको क्वेश्चन आता है for 3 or 4 marks that you have to explain about the anatropous ovule or the development of the female gametophyte, so the previous diagram and this diagram are very crucial for that. So here what you will explain कि development of female gametophyte कैसे हो रहा है. यहाँ पे आपका मेगास्पोर मदर सेल था जो कि डिप्लॉयड इन नेचर था. इसने माइटोटिक डिवीजन किया. माइटोटिक डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, और इसने अपनी 4 डॉटर सेल्स बनाई जो कि हैप्लॉयड इन नेचर थी. उनमें से आपके 3 ऊपर के सेल्स जो थे वो डीजनरेट हो चुके हैं, एंड द वन विच रिमेन, वो मेगास्पोर सेल 3 माइटोटिक डिविजन्स के गो थ्रू गया और इसने फॉर्म किया 8 न्यूक्लियस स्टेज. अब आपके ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं, इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अलाइन किया कि आपकी 3 सेल्स टूवर्ड्स द टर्मिनल पोजीशन आके उन्होंने एंटीपोडाल सेल्स बनाए. 3 सेल्स जो नीचे गई उन्होंने सिनर्जिड्स प्लस एग सेल बनाया, एंड द 2 cells which were in the center, they converted into the polar nuclei. And you have to remember that all these 8 nuclei which form here are haploid in nature. Further, अब हमारा मेल गैमेटोफाइट जिसके पास हमारा मेल गैमेट है और हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसके पास हमारा फीमेल गैमेट है, दोनों बन के रेडी है. तो अब द नेक्स्ट प्रोसेस विच कम्स कि हमारा ये जो पोलन ग्रेन है जिसके पास हमारा मेल गैमेटोफाइट है, वो हमारे स्टिग्मा के पास पहुँचे और वो फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करे. फर्दर ये कैसे होता है? तो ये होता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन
जो है ये एक प्रोसेस है वेयर द एंथर comes towards the stigma of the plant flower. So the transfer, anther does not come, but the pollen grains do come at the stigma. So the transfer of pollen grain from stamen to stigma of flower is called as pollination. अब जब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनेशन का मतलब है कि जब हमारा एंथर से निकल के पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. तो ये पॉलिनेशन होता कैसे है? क्या आप और मैं कंट्रीब्यूट करते हैं इस पॉलिनेशन को? ये इंसेक्ट्स, आपने देखा होगा इंसेक्ट्स हमेशा फ्लावर में बैठते हैं और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते रहते हैं. तो इसी प्रोसेस में व्हेन इंसेक्ट्स बर्ड्स डू दिस प्रोसेस कि वो एक फूल पे बैठे हैं दूसरे फूल पे चले गए, तो ऐसे ही हमारे जो पोलन ग्रेन्स है वो उनके बॉडी में स्टिक हो जाते हैं और वो ट्रांसफ़र होते हैं. बट क्या ये प्रोसेस सिर्फ बर्ड्स और इंसेक्ट्स करते हैं या ये नेचुरली किसी एजेंट के थ्रू भी होती है? राइट. सो देयर आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. That is abiotic pollinators and biotic pollinators. Now, when we talk about abiotic pollinators, that is, that agent can be water or it can be wind. अगर आपका पोलन ग्रेन विंड से पॉलिनेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली. अगर आपका पोलन ग्रेन वाटर से पॉलिनेट हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. बट हाइड्रोफिली के बेटा 2 टाइप्स होते हैं. अगर आपका पोलन ग्रेन अंडर वाटर ही ट्रांसफ़र हो रहा है फ्लावर टू स्टिग्मा एंड स्टेमन टू स्टिग्मा, तो उसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली. एंड अगर आपका पोलन ग्रेन अबव द वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज एपी, और सरफेस ऑफ द वाटर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली. नाउ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट एबायोटिक एजेंट तो वो 2 तरीके से ट्रांसफ़र होंगे, वाटर से विंड से. वाटर हाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली. अंडर वाटर इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली एंड अगर वो सरफेस ऑफ वाटर और अबव वाटर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एपीहाइड्रोफिली. और अगर आपका पोलन ग्रेन विंड से ट्रांसफ़र हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली. नाउ वी विल टर्न टूवर्ड्स द बायोटिक एजेंट्स. और बायोटिक एजेंट्स में आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है दैट कैन बी डन बाय 3 काइंड ऑफ एजेंट्स दैट आर insects, birds and bats. When this process is done by insects, it is called as entamophily. When it is done by birds, it is called as ornithophily. और जब यही प्रोसेस आपके बर्ड्स करते हैं तो इसे कहते हैं काइरैप्टेरोफिली. Now, this is the pollination which can be done, which is a transfer of pollen grain from the stamen to the stigma of the flower, that can be done by abiotic factors and biotic factors. एबायोटिक एजेंट्स पे वाटर और विंड याद रखना है. वाटर में अगर अंडर वाटर हुआ तो हाइड्रोफिली, अबव वाटर सरफेस हुआ तो एपीहाइड्रोफिली. देन
विंड से अगर हो रहा है आपका पॉलिनेशन, दैट इज एनिमोफिली। बायोटिक एजेंट अगर कर रहे हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स, इंसेक्ट्स करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंटामोफिली। बर्ड्स कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज ऑर्निथोफिली, एंड बैट्स कर रहे हैं तो इसे कहते हैं चायरेप्टेरोफिली। नाउ we will turn towards what characters does each and every pollen will possess or the flower will possess। जैसे आपको पता है कि अगर फ्लावर्स बहुत ब्राइटली कलर्ड है, बहुत सुंदर कलर है, तो वो अपने आसपास के इंसेक्ट्स को रिझाने के लिए उस तरीके से होते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनका टिब्यूलर स्ट्रक्चर रहता है और जिसपे काफ़ी नेक्टर रहता है, तो अगेन दैट इज़ फॉर द बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, राइट। एंड व्हेन द फ्लावर हैज़ टू गेट पॉलिनेटेड, जब पॉलिनेशन का प्रोसेस विंड से हो, तो इसका मतलब है जब हवा में पोलन ग्रेन उड़ने चाहिए, हमें ये चाहिए, तो पोलन ग्रेन का वेट काफ़ी कम होना चाहिए, एंड दैट फ्लावर मे नॉट बी नेसेसरीली वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि विंड को क्या मतलब है फ्लावर सुंदर दिखे या ना दिखे, बट विंड को दो चीज़ें, जैसे हमारा जो नेचर है या गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग विथ सो मच लॉजिक, तो ये जो विंड से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स हैं, इसके पॉलिनेशन के जो पोलेंस हैं, इसके जो पोलेंस हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं कि ये लाइट वेट है, सो दैट ये हवा के साथ जल्दी जल्दी उड़ सके। एंड सेकेंड फीचर इन दैम इज कि हमारे पोलन ग्रेन्स अपेक्स में सिचुएटेड रहते हैं, सो दैट विंड इनको जल्दी जल्दी अपने साथ ले जा सके। अब हम देखने वाले हैं एक एक करके कि हमारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कौन कौन से फीचर्स रहेंगे हर एक फ्लावर में, अगर वो विंड से पॉलिनेट हो रहा है, बर्ड पॉलिनेट कर रहे हैं उससे, या बेट्स पॉलिनेट कर रहे हैं। अब हम पॉलिनेशन देख चुके हैं। पॉलिनेशन इज व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब yes, kinds of pollination is also very crucial. Kinds of pollination में there are 3 kind of pollination, that is autogamy, geitonogamy and xenogamy. So autogamy, word itself tells you, auto means self. तो जब हमारे पास हमारा एक फ्लावर है और ये इसका स्टिग्मा है और ये एंथर, अब अगर हमारे इन एंथर से हमारे पोलेंस इसी स्टिग्मा पर जा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो है इसमें सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में आपके पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं। देन गाइटेनोगैमी, गाइटेनोगैमी में सपोज अगर ये प्लांट 1 है, there would be another flower in the same plant. इसी प्लांट में हमारे पास एक और फ्लावर होगा और मान लीजिए इसके एंथर से हमारा पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे चला गया। मतलब अगर ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है और ये सेम प्लांट है P1, तो अगर हमारे एक फ्लावर के एंथर से निकलकर हमारा पोलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज गाइटेनोगैमी। नाउ व्हाट इज जेनोगैमी? तो यहाँ पे 2 प्लांट्स इन्वॉल्व रहेंगे, यहाँ पे प्लांट 1 प्लांट 2 रहेगा और यहाँ पर भी फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है बट सेम स्पीशी का फ्लावर है, सेम स्पीशीज का फ्लावर है। तो यहाँ के जो एंथर हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे अपने पोलेंस अगर रिलीज कर दे या ट्रांसफर कर दे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेनोगैमी। यहाँ पर सेम फ्लावर, आपको ऑटोगैमी में याद रखना है कि सेम फ्लावर में ही जो आपका पोलन ग्रेन है वो आके स्टिग्मा पे बैठ गया। देन गाइटेनोगैमी में आपको ये याद रखना है कि हमारा प्लांट सेम है बट फ्लावर्स 2 डिफरेंट हैं, तो हमारे इस फ्लावर का, सपोज दूसरे फ्लावर का जो हमारा पोलन ग्रेन है वो फर्स्ट फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच गया, तो दैट इज डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट।
of same plant. लेकिन जीनोगैमी में हमारे प्लांट्स दो हैं, बट वो दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं पर सेम स्पीशीज के हैं। इसीलिए यहाँ से जो आपका एंथर निकल रहा है, यहाँ से जो आपका एंथर से पोलन ग्रेन निकल रहा है, वो रिलीज होकर यहाँ के दोनों फ्लावर्स में, प्लांट वन के दोनों फ्लावर्स में, सपोज स्टिग्मा पे दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं जीनोगैमी। सो द डिफरेंट plants here, different plants would be there but same species. Now there are two kinds of again autogamy that can be done by chasmogamy, जहाँ पे आपका जो फ्लावर है वो ओपन होगा और उसके स्टेमन और उसका स्टेमन मतलब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट वो दिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज कैस्मोगैमी। एंड देयर इज क्लिस्टेनोगैमी, जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर बंद रहता है और उसी स्टेज में आपके एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर हो जाते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स the agents of pollination and how or what characters does this particular pollens have to be pollinated. Now this is the pictorial representation of autogamy, geitonogamy and geitonogamy and xenogamy. So जब एक फ्लावर से इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आ रहा है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का अनदर एग्जाम्पल है गाइटेनोगैमी, जहाँ पे एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में आपस में इंटरचेंज हो रहा है। सपोज ये इंसेक्ट यहाँ बैठा था, इसने अपने पोलन्स अपने बॉडी में ले लिए और ये दूसरे फ्लावर में चला गया, तो यहाँ पे सेम प्लांट में दोनों फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज, अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और इसी को हम गाइटेनोगैमी कह रहे हैं। और अगर दो प्लांट्स हैं आपके, बट वो दोनों प्लांट्स जो हैं वो सेम स्पीशीज के हैं और उनके बीच में अगर आपका पोलन ग्रेन जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक से होते हैं। देन दिस some plants such as Viola, Oxalis and Commelina produce two types of flowers, that is chasmogamous flower, which are similar to the flowers of the other flower species with exposed anther and stigma. तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, chasmogamous flowers में आपको stigma और anther बाहर मिलेंगे, they are in the outer surface, और यहाँ पे clistogamous flowers में the flower is not open at all. So the clistogamous flowers are invariable autogamous as there is no chance of cross pollination. So अगर फ्लावर बंद ही रहेगा तो उसमें चांसेस ही नहीं है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर पाए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आ ही नहीं पाएंगे। नाउ वी हैव सीन द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो करते हैं उन्हें कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि विंड वाटर से पॉलिनेशन होता है, विंड से हो रहा है तो एनिमोफिली, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट्स कर रहे हैं तो एंटामोफिली, बर्ड्स कर रहे हैं तो अगेन दैट वुड बी ऑर्निथोफिली, और अगर बैट्स कर रहे हैं तो हमने उसको कायरैप्टेरोफिली कहा है। अहेड व्हेन वी मूव, विंड और वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो किस तरीके के पोलन्स रहने वाले हैं वो कैरेक्टर्स हम यहाँ पर देखेंगे। Now, in Vallisneria plant, female flower reach the surface of the water by the long stalk and the male flowers or pollen grains are released on the surface.
तो अभी यहाँ पर आप वेलिस्नेरिया के प्लांट में अगर आप देखें तो ये वाटर के सरफेस पे इनका पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि फ्लावर्स जो है, जो मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, वो पॉलिनेशन करने के लिए सरफेस में प्रेजेंट है, एंड दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीहाइड्रोफिली। अब जो प्लांट्स विंड जिनको प्रोपेगेट करेगी, पहुंचाएगी, ट्रांसफर करेगी, उसे हम कहते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंथर कुछ इस तरीके से अरेंज है कि वो विंड को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज रहे, सो दैट आपका पोलन ग्रेन हवा के साथ उड़ता चला जाए। नाउ biotic agents are living organisms that influence ecosystem. Diverse biotic agents play unique roles in the ecosystem. So if insect pollinated plants हैं तो pollinators जैसे bee और butterflies रहती है, तब आपके जो pollinators रहेंगे वो नेक्टरीज पीने के लिए आपके फ्लावर में बैठेंगे, जूस जो फ्लावर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है वो पीने के लिए आपके फ्लावर्स में बैठेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा कलरफुल रहेंगे। तो ये सारे कैरेक्टर्स पजेस करते हैं हमारे वो फ्लावर्स जो हमारे बर्ड्स या इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं। नाउ देयर आर सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। व्हाट डज दिस मीन? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स हमारा फ्लावर कैसे क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करेगा, उसे प्रमोट करेगा। सो वन एग्जाम्पल ऑफ दैट कैन बी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हमारे पास हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दैट मीन्स इट हैज़ द female and male reproductive part, it can be reproduced by itself. So here जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो डायरेक्टली हमारे स्टिग्मा में आ सकते हैं। अब बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट हमारा डेवलप हो चुका है, हमने पॉलिनेशन भी देख चुके हैं। अब पॉलिनेशन में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज लीवर मैकेनिज्म। इन सेल्विया। अब नेचर ने कुछ अडेप्टेशन किया है, कुछ इवोल्यूशन किया है, जिसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को ही बुलाने के लिए किया गया है। तो अब यहाँ पे लीवर मैकेनिज्म में फ्लावर्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं सो दैट कि आपका जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे आके सपोज बैठे और ये फ्लावर कुछ इस तरीके से अपने आप को डेवलप करेंगे कि ये इंसेक्ट्स को टच कर पाएँ, सो दैट यहाँ पर अगर इनके एंथर्स हैं तो यहाँ से ये पोलन डायरेक्टली इंसेक्ट पे लग जाए। अब ये डायग्राम काफ़ी फ़नी है, पर आप इस पे ना ध्यान देकर ये ध्यान देंगे कि लीवर मैकेनिज्म में फ्लावर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा, नेचर ने फ्लावर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया होगा कि ये बर्ड या इंसेक्ट के बैठने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबली ये फ्लावर बना होगा। और ये फ्लावर का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से, लीवर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करेगा कि ये जो फ्लावर है ये इंसेक्ट के बैठने के बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन को लगेगा, जिससे ये इसके जो पोलेंस हैं वो इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन कॉन्ट्रीवेंसेस। अब हमारे पॉलिनेशन हो जाने के बाद अब फाइनली हमारा मेल गैमेटोफाइट जो है वो स्टिग्मा तक के पहुंच जाएगा और स्टिग्मा में पहुंचने के बाद इट विल एंटर टुवर्ड्स ओवरी। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ पॉलिनेटिंग एजेंट्स आए, उन्होंने पोलेंस को कैरी किया एंड दे कैरी टुवर्ड्स द फ्लावर। नाउ एज वी विल सी, अब
नॉर्मल पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन, नॉर्मल पॉलिनेशन कुछ ऐसे होगा कि जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि फ्लावर के ही एंथर्स उसके स्टिग्मा में पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत ज़्यादा, क्रॉस पॉलिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। तो उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जहाँ पे प्लांट प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड करता है क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि उस फ्लावर में, एक पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर में किसी और फ्लावर से एंथर्स पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स डायोसिज्म, जिसका मतलब होता है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल रहेगा। इट मीन्स फ्लावर वुड बी हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, दैट कैन बी, इट कैन बी अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर ऐसा होता है तो फ्लावर प्रोबेबली क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा, क्योंकि अगर फ्लावर के पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है तो फ्लावर के पास पोलन ग्रेन बनाने वाला जो स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो एंथर पर्टिकुलर पोलन्स है वो दूसरे प्लांट से आएंगे। नाउ दिस जनरली हैपन्स इन पपाया प्लांट। नाउ डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में हमारे जो पर्टिकुलर स्टेमिन रहता है या कार्पेल रहता है, उसका मैच्योरेशन अलग अलग टाइम पर होता है। एक तरफ आप देख सकते हैं, कभी हो सकती है प्रोटेंड्री हो, कभी हो सकता है प्रोटोगाइनी हो। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री? तो अगर आप देख रहे हैं प्रोटेंड्री मतलब एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम अगर पहले मैच्योर हो जा रहा है किसी फ्लावर का, सपोज अगर एक फ्लावर है उसका एंड्रोशियम, मेल गैमेट, ये एक फ्लावर है जिसका ये स्टिग्मा है और ये इसके एंथर्स है। एंड सपोज एंथर्स अगर जल्दी से मैच्योर हो चुके हैं और हमारा स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, तो चांसेस है कि ये जो हमारे एंथर के पोलन ग्रेन्स है वो कहीं और ट्रांसफ़र हो, किसी और फ्लावर में चले जाए। तो इसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री। एंड प्रोटोगाइनी में हमारा स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा और एंथर हमारे बाद में मैच्योर होंगे, जिसके वजह से स्टिग्मा में कुछ और पोलेंस आ जाएंगे, कई और फ्लावर के पोलेंस आ जाएंगे, बिकॉज हमारा स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है एंड इट कैन रिसीव द पोलन ग्रेन्स। सो प्रोटेंड्री मीन्स द मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम। अर्लियर, ये थोड़ा पहले मैच्योर हो जाता है। देन प्रोटोगाइनी मीन्स योर अर्ली मैच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम। Now, when we look at प्रीपोटेंसी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर फ्लावर का स्टेमिन अर्ली मैच्योरेशन शो करेगा, या फिर हमारा जो स्टेमिन है उसके ही पर्टिकुलर जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारे स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं होंगे। तो प्रीपोटेंसी इज मोर और लेस सिमिलर to the dichogamy, where the pollen of the same flower do not germinate in the stigma of the same flower, and that occurs in apple. Now heterostyly or heteromorphy. Hetero means different and morphy means structurally arrangement.
सो हेट्रोस्टाइली और हेट्रोमॉर्फी में आपको कुछ ऐसा मैकेनिज्म देखने मिलेगा जहां हमारा फ्लावर और हमारे एंथर का प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होगा, हमारी फ्लावर एंथर और स्टिग्मा का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि नॉर्मली जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो पॉसिबल ना हो। अगर सपोज हमारे स्टिग्मा काफ़ी बड़ी है और हमारे एंथर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम चांसेस है कि आपके ये जो एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं वो निकल के इतनी ऊपर आ पाए, स्टिग्मा पर आ पाए। दैट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्टाइली और हेट्रोमॉर्फी, जहाँ पे आपका स्टिग्मा या आपका एंथर हो सकता है किसी ऐसी जगह लोकेटेड हो फ्लावर पार्ट में जो नॉर्मल सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर्कोगैमी में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मैकेनिकल बैरियर्स, और यू कैन से कुछ बैरियर्स रहते हैं जिसके वजह से आपका एक नॉर्मल पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक के पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्टिग्मा या ओवरी तक के पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बैरियर हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टिग्मा जो है इसके आउटर कवरिंग में ही ऐसा कुछ हो कि दैट डू नॉट अलाउ द पोलन ग्रेन्स टू फॉर्म द पोलन ट्यूब इनसाइड द stigma style and enter in the ovary. So here what happens, a mechanical barrier or some barriers are there which prevent the anther or pollen from the same flower to enter into the stigma. Apart from that, there is self incompatibility. यहाँ पर फ्लावर अपने स्टेमन से अपने एंथर को एंटर करने नहीं देगा। अगेन ये ड्यू टू जेनेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। सेल्फ इनकम्प्लीट कंपैटिबिलिटी में जेनेटिक रेजिस्टेंस शो होता है फ्लावर के द्वारा। अब जेनेटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या? अब फ्लावर अपने खुद के पोलन ग्रेन्स को पहचान जाएगा और जब वो उसमें एंटर करने का ट्राई करेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के लिए दिक्कत जाएगी या वो प्रोसेस होगी ही नहीं। सो दिस अकर्स इन थिया एंड टोबैको प्लांट। नाउ दिस वर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का काम क्या है? तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके हमने कुछ यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स देखे। दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, जहाँ पे प्लांट के पास एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, मेल या फीमेल, तो यहाँ पे ऑब्वियसली चांसेस ही क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। डाइकोगैमी, यहाँ पे प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी होती है। प्रोटेंड्री मतलब या तो एंड्रोशियम पहले डेवलप हो जाएगा, तो फिर एंड्रोशियम जब डेवलप हो चुका है तो वो अपने पोलेंस छोड़ देगा, और क्योंकि इस फ्लावर का स्टिग्मा डेवलप नहीं है तो ये एंथर कहीं, ये पोलन ग्रेन्स कहीं और फ्लावर में जाके जर्मिनेट हो जाएंगे। सिमिलर गोज विद प्रोटोगाइनी। अब यहाँ पे पोटेंसी में भी इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वेयर द male reproductive organ or female reproductive organ do not interchange, but the pollen grains are not allowed in the female reproductive plant. Now heterostyle और heteromorphy, यहाँ पे हमारे प्लांट ने स्ट्रक्चर ही अपना कुछ इस तरीके से कर लिया है कि हमारा एंथर जो है उसके पोलेंस हमारे स्टिग्मा तक के पहुँचेंगे ही नहीं, तो इनका जो लोकेशन है वो ही बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग रहेगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हर्कोगैमी इज देयर, यहाँ पे मैकेनिकल बैरियर्स आ जाएंगे। यहाँ पर स्टिग्मा डायरेक्टली इट विल डेवलप समथिंग सो दैट कि आपका ये जो पोलन आ रहा है वो उसको रेजिस्ट कर देगा और उसको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं चूज करेगा। सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी इज ऑल्सो सेम वेयर जेनेटिक रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। नाउ दिस वर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। लेकिन अब हमको देखना है, क्योंकि पोलेंस को तो पहुंचना ही है स्टिग्मा तक के और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो होनी ही है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। मूविंग अहेड, अब एंट्री तो होनी है पोलन ग्रेन की, राइट। अब पर्टिकुलर अगर आप ये वाला डायग्राम याद कर रहे हैं तो हमारा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। अब हमें याद है हमारे पोलन ग्रेन में है 2
जनरेटिव सेल्स और एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, तो ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल है ये यहाँ से एंट्री कराने का काम करेगा। दिस इज स्टाइल। तो स्टाइल जो है यहाँ से हमारी एंट्री फैसिलिटेट होगी टूवर्ड्स आर ओवरी। नाउ अगर हमारा ये पोलन ट्यूब इस साइड से एंटर कर रहा है, मीन्स माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रहा है, तो हमने इसे नाम दिया है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। हम इसे कहते हैं पोरोगैमी। तो अगर हमारा पोलन ग्रेन यहाँ से आकर नीचे से एंटर हो रहा है तो दिस फिगर ए इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। नाउ इफ दैट पर्टिकुलर अब यहाँ पे देखिए अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा पोलन ट्यूब, तो हमारे पोलन ट्यूब को लगा भैया हम इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे, हम क्या करेंगे, तो हम सपोज यहाँ पे दूसरा पोलन है और ये दूसरा पोलन ने डिसाइड किया कि हम यहीं से एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ से अगर हमारा पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है तो ये है हमारा चलाइजल एंड। तो अगर हमारा पोलन ट्यूब चलाइजल एंड से एंटर कर रहा है तो इसको हम कहते हैं चलाइजोगैमी। अगर आप ये फिगर बी देख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे चलाइजोगैमी। नाउ this when the pollen tube enters from the intermediate position or integuments it is called as mesogamy। तो ये जो आपका सी वाला पोजीशन है इसे हम कहते हैं मेसोगैमी। नाउ अगर पोलन ट्यूब आ रहा है तो वो 3 रास्ते अपने लिए चूज कर सकता है। अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से आ रहा है तो इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको जो ए दिख रहा है जहां पे पोलन ट्यूब ने माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री की है, इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। अगर ये चलाइजल एंड के तरफ से आ रहा है अपना रास्ता छोटा करते हुए तो इसे हम कहते हैं चलाइजोगैमी। और अगर ये इंटीग्यूमेंट से इंटरमीडिएट रास्ता बनाकर आ रहा है तो इसे हम कहेंगे मेसोगैमी। अब आफ्टर नोइंग दिस हमारा पोलन ट्यूब तो एंटर हो गया। अब हमारे जो जनरेटिव सेल्स हैं वो कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, कैसे प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का, वो हम पढ़ने वाले हैं। नाउ अब आपका ये जो पोलन है, पोलन ट्यूब है, इसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। पोलन ट्यूब आ चुका है यहाँ तक के जहाँ पे हमारे सिनर्जिड्स लोकेटेड हैं। अब ये सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगा टुवर्ड्स द पर्टिकुलर मेल जर्म सेल। हमारे पास 2 मेल जर्म सेल है, तो हमारे जो मेल जर्म सेल है वो यहां से ये हमारे मेल जर्म सेल्स हुए। हमारे ये जो दोनों हैप्लॉइड मेल जर्म सेल्स हैं ये कुछ पोलन ट्यूब से एंट्री कर कर यहां पहुंचेंगे। अब नाउ अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये पोलन ग्रेन आ चुका है। हमारे पोलन ग्रेन ने
Okay, these are our antipodal cells. This is, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये पोलर न्यूक्लियाई का हमको पता है, ये हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये हमारा एग सेल है और ये हमारे सिनर्जिड्स है और उसके नीचे ही हमारा फिलिफॉर्म अपैरेटस है। ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया, दिस इज कॉल्ड एज फिलिफॉर्म अपैरेटस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नाउ अब जब ये हमारा पोलन यहाँ पर आ चुका है तो अब ये जर्मिनेट होगा और इसने पोलन ट्यूब बनाई और ये बना कर सिनर्जिड्स को डीजनरेट करते हुए आएगा। अब यहाँ पे हमारा ये जो पोलन ट्यूब आ रहा है, ये लेकर आ रहा है अपने साथ हमारे मेल गैमेट्स। नाउ Now this purple color is for our male gametes. अब हमारा ये जो मेल गैमेट थ्रू पोलन ट्यूब आया है, ये एक मेल गैमेट, क्योंकि हमारे पास जनरेटिव जो सेल्स थी वो 2 थी, राइट। हैप्लॉइड हमारे पास 2 सेल्स थी। तो अब यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है जहाँ हमारा एक जनरेटिव सेल दैट इज मेल गैमेट हमारे एग सेल जो कि हैप्लॉइड इन नेचर था उसके साथ फ्यूजन कर रहा है और हमारा जो दूसरा मेल गैमेट है वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों फ्यूजन हो रहे हैं, दैट शोज दैट पर्टिकुलर फ्लावर इज गोइंग थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन। इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक हमारा जो मेल गैमेट जनरेटिव सेल था वो हमारे एग सेल के साथ आके फ्यूजन कर गया और उसके बाद हमारा जो दूसरा जनरेटिव सेल था उसने हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूजन शो किया। तो दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में आती है। नाउ अब हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरी फर्स्ट थिंग इज हमारे जो सिनर्जिड्स थे जब उन्होंने हमें एंट्री दी, हमारे जर्म सेल्स को एंट्री दी, तो यहाँ पे ये जो हमारी जनरेटिव सेल 1 थी या मेल गैमेट 1 था प्लस इसके साथ हमारा एग सेल कंबाइन हो गया, ठीक है। अब ये एन स्ट्रक्चर, ये एन स्ट्रक्चर, ये दोनों ने मिलके बनाया है हमारा जाइगोट जो कि डिप्लॉइड इन नेचर होता है। नाउ एक जनरेटिव सेल एक एग सेल मिला के जाइगोट बन रहा है जो कि हमारा डिप्लॉइड इन नेचर है। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ। अब उसके बाद एक और हमारा फर्टिलाइजेशन हमें कहाँ देखने मिल रहा है, जब हमारा पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था उसने फ्यूजन किया है दूसरे जनरेटिव मेल गैमेट के साथ और यहाँ हुई है ये जो कि हैप्लॉइड था, ओके। और यहाँ 2n + n, तो ये इसकी जो प्लॉइडी रहेगी बेटा, ये प्लॉइडी हो जाती है 3n, जिसको आप एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस। तो दिस इज PEN। अब प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस क्या काम आता है, तो अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ गया, ट्रिपल फ्यूजन
हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2n+n हो रहा है, तो दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। PEN हम बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोन्यूक्लियर जो बना है, ये क्यों बना है? तो ये बना है हमारी जो जाइगोट है उसको नरिश करने के लिए। नाउ फर्दर वी विल सी यहाँ पे ये जो PEN स्ट्रक्चर बना है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये फर्स्ट बेनिफिट ये कर रहा है, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये हमारे जाइगोट को नरिशमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। तो देयर इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस PEN स्ट्रक्चर, दिस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड पर्टिकुलरली पेपर में क्या आता है बेटा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन, they may ask you what is syngamy, they can ask you triple fusion क्या है, and what is the importance of PEN, that is primary endonucleus, right? तो ये सारी चीज़ें आपको करते चलना है for exam point of view. Now this is again double fertilization. अब हम इसको रिवाइज करते हुए क्विकली फिनिश करेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था स्टिग्मा का, मतलब हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब यहाँ से ये पोलन ट्यूब आया और इसने जनरेटिव सेल लेकर आया, और ट्यूब सेल न्यूक्लियस, अगेन दिस इज फॉर हेल्पिंग। सो जनरेटिव सेल्स हमारी आ गई, और हमारी जो जनरेटिव सेल्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिनर्जिड्स, अब यहाँ पे जो सिनर्जिड्स रहते हैं वो, अब दिस जनरेटिव सेल आई टोल्ड यू कि या तो ये पहले भी डिवाइड हो जाती है या ये बाय द प्रोसेस डिवाइड होती है। तो हमारे पोलन ट्यूब में भी हो सकता है कि हमारी जनरेटिव सेल डिवाइड हो। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, तो यहाँ पे वो जनरेटिव सेल डिवाइड हुई है, बट ये पहले भी हो सकती है। नाउ इट डिजेनरेटेड द सिनर्जिड एंड इट एंटर्ड। अब यहाँ पे ये जो हमारी सेल्स है ये क्या करेगी, एक जो हमारा मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करेगा विद द एग सेल, दूसरा वाला जो है वो फ्यूज़ करेगा विद पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे हमारे दो तरीके के स्ट्रक्चर्स अगेन बन के रेडी हो जाते हैं। दैट इज द ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस PEN, and another is our zygote that is diploid in nature. Now moving ahead, अब हमारा ये जो एंडोस्पर्म बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे हम कह रहे हैं, ये कुछ 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो गिवन 3 टाइप्स आर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब यहाँ आपको बेटा क्या देखने मिलेगा कि आपका जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, राइट, ये जो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यहाँ पे पहले आपके पूरे न्यूक्लियस बन के रेडी हो जाएंगे, और फिर ये फ्री न्यूक्लियस जब आपके बन गए तो इसके बाद में इसको सराउंडिंग वॉल आएगी और ये डिवाइड होंगे, कुछ इस तरीके से इसके सेल्स बनेंगे। तो पहले आपके ये पूरे न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद यहाँ पे ये अपनी मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इसको अपना सेपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नाउ सेलुलर एंडोस्पर्म, तो पहले ये सेल थोड़ा स्मार्ट है, ये क्या कर लेगा, ये बेटा पहले ही अपनी मेम्ब्रेन्स बना लेगा, कवरिंग्स बना लेगा, इसने बना ली अपनी कवरिंग्स, और इसके बाद ये फाइनली अपने न्यूक्लियस ला देगा। तो इफ दिस काइंड ऑफ डिविजन यू सी, इट इज कॉल्ड एज cellular endosperm. Now what is halobial endosperm? अब halobial endosperm, it is a combination of both of this. यहाँ पे क्या हुआ, हमारी न्यूक्लियस पहले बन गई, फिर हमारी मेम्ब्रेन बन रही है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे मेम्ब्रेन बन के रेडी हो गए, स्ट्रक्चर्स बन के रेडी हो गए, फिर हमारी न्यूक्लियस बन रही है। अब हेलोबायल एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो है ये अपने आप को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेता है, और इसको 2 हाफ्स में एक माइक्रोपाइलर, एक चेलाइजल, राइट। और इसके बाद ये जो एंडोस्पर्म है ये दोनों तरीके से डिवीजन शो करेगा। वन काइंड ऑफ डिवीजन वुड बी फ्री न्यूक्लियर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियर बन गई, ये न्यूक्लियस बन गई, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गई, और उसके बाद ये अपने ऊपर बॉर्डर ले रहा है, अपने ऊपर मेम्ब्रेन ले रहा है, एंड इन डिफरेंट, और इसके बाद वाले में आपको देखने मिलेगा कि इसने अपने आप के लिए डिविजन्स कर लिए, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस बन रहे हैं। Now this can be micropylar and smaller one.
and this one is chalizo. Now, these are the types of endosperm. Moving ahead, after this kind of endosperm, we will see ki how endosperm develops into the monocot and dicot seeds, how apomixis occurs, how polyembryony occurs. So few topics we will see in the upcoming lecture, and with that we will also see what kind of important questions are there from this chapter, what are the important diagrams. Again, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही सारी चीज़ें बताते चली है, लेकिन हम फिर भी एक बार सारे important topics apart from that कुछ definitions और upcoming lectures में how the endosperm develops in the monocots and dicots, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. Thank you.